Hello students, how are you all? Good morning. I hope you all are fine. As you all know, in the first part we had a small introduction about bank and the various things about filling of the form, the documents required with different banking facilities. So in the second part, as I told you, I'll come up with the letters. That is the first. In the second part, we'll be doing requesting letters. So we get started now of how to write requesting letters to the bank. Now, letter regarding to stop the payment of a check. So you have to write a requesting letter to the bank of stopping a payment of a check. So let's see why. Now your letter regarding to stop the payment of a check. So first your on this hand side you have to write your phone number. इस तरफ जो है आपको आपका phone number लिखना है, residence number, यहाँ पे जो भी आपका number होगा. Then here you have to write your mobile number 9222343554 whatever. At the left hand side you have to write your phone number, that's your residence number, normal number which everybody uses. Then below that if you have another number, that's your mobile number, you have to write that. This will be written in the left hand side. At your right hand side will be your proper address. That is, if your address is Dr. Mihir Lagwankar, 24 Flamengo Park, New CG Road, Chandakheda, Ahmedabad 382424. So that's your pin code which has to be written along with the date, that's 28 July 2017. Now who are you sending this letter to? It's a requesting letter, so obviously you are sending it to the manager. So again at the left hand side आपको लिखना है the manager, State Bank of India, जो बैंक पे आप भेजने वाले हो, देना बैंक हो, State Bank of India, Bank of Baroda हो, स्टेट कोई भी बैंक हो, तो यहाँ पे उनका लेफ्ट हैंड साइड पे एड्रेस लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू CG रोड, Chandakheda, Ahmedabad 382424. Then you start with your letter writing. So first you write here, dear sir, comma, आपका subject क्या था कि you have to stop the payment of check number 02363308. तो यहाँ पे आपको जो चेक है आपका उसे स्टॉप करना है. क्यों? Let's see. I have held SBAC number. इसका मतलब सेविंग बैंक अकाउंट नंबर. आपके नंबर क्या है वो लिखना है 1012324556. So this is your saving bank account number with your bank. Means आपका जो एक सेविंग अकाउंट है इस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है for the last 12 years and I operate it regularly. 12 साल से आपका इस बैंक के साथ एक अकाउंट है और आप रेगुलरली उससे ऑपरेट मीन्स इसके साथ हर महीने या आफ्टर मे 2 or 3 मंथ्स उससे आप जाके देखते हो. दिस लेटर इज रिटन टू कंफर्म. ये लेटर इसीलिए लिखा है टू कंफर्म द टेलीफोनिक टॉक या कॉन्वर्सेशन में जो बात आपने फोन पे की है, हेल्ड इन द मॉर्निंग जो सुबह आपने बात की है, रिगार्डिंग द टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ अ चेक. रिगार्डिंग कि आपने एक पेमेंट बोला है चेक का करना है लेकिन आपको उसे रोकना है. क्यों रोकना है? बिकॉज द चेक नंबर 02363308 इज रिटन इन द नेम ऑफ मिस्टर Shrikant Joshi, dated 19 July 2017 and drawn on the State Bank of India of ₹10,000. I seem to have lost or misplaced. Means आपसे वो misplace या loss हुआ है तो आपने ये लेटर या सुबह उनके साथ पहले फोन पे बात की है और उसके बाद आप ये लेटर उनको देना चाहते हैं. I am worried, मैं परेशान हूँ as it is a bearer check क्योंकि एक bearer check ये check खाली है. If the above mentioned check is presented to the bank, अगर ये check आपके पास बैंक में आया और प्रेजेंटेड टू यू बाय एनीवन, किसी के पास से भी अगर ये आपके पास बैंक में आया, प्लीज डू नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द सेड चेक. तो आपको पेमेंट इस अकाउंट चेक नंबर या मेरे अकाउंट में से आपको ये ट्रांजैक्शन करना नहीं है, आपको ये पेमेंट नहीं करना है. बोल आई हैव फुल फेथ, वो लिखते हैं आई हैव फुल फेथ दैट यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएटली, एट वंस, जल्दी से कोई भी एक्शन लेंगे इन दिस रिगार्ड. थैंक यू, योर्स फेथफुली एम लगवनकर, मिहिर लगवनकर. तो यू हैव टू राइट एट द सेम साइड, जहाँ पे जो साइड पे आप डियर सर लिखते हो उसी लेफ्ट हैंड साइड में बाद आप थैंक यू लिखेंगे. योर आफ्टर दैट यू राइट योर्स फेथफुली क्योंकि आपने लेटर लिखा है, आप एम लगवनकर योर साइन एंड मिहिर लगवनकर. तो दिस इज बिकॉज इट्स द टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ अ चेक. अभी यहाँ पे एक हो गया आपका रिक्वेस्टिंग लेटर. अभी दूसरा रिक्वेस्टिंग लेटर हम देखेंगे वो कौन सा है. उसका है टू ऑब्टेन द फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM फैसिलिटी. अगर आपको ये कोई भी एक फैसिलिटी चाहिए बैंक में तो उसके लिए आप
बैंक को उनका एड्रेस आएगा और उनके नीचे से वो वापस स्टार्ट होगा. So let's see. Now the mobile number 942453 and whatever is the number, here it comes, that's your address, Dinesh Shah, Sai Art Store, Dabhan Cross Road, Nadia 38 701. Or when is it written? 11 October 2017. It's very important that you write down the date. Leaving a line, you have to write down the date. Then again on your left hand side, you have to write the manager, UCO Bank, Pidge Road, Nadia 38 701. आपका सब्जेक्ट लिखना बहुत ही जरूरी है. इसी फॉर्मेशन में सब्जेक्ट टू गेट डेबिट कार्ड, एटीएम फैसिलिटी. अगर आपको डेबिट कार्ड या एटीएम की फैसिलिटी चाहिए तो आपको उस सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा. लीव अ लाइन हियर, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट टू गेट डेबिट कार्ड, एटीएम फैसिलिटी. Here again you come to left hand side, sir, comma is necessary. Then you start with your letter writing. For the last 4 years, last 4 साल से I have been holding saving bank account number that is 001 7704 5603. तो आपके एक अकाउंट है 4 साल से with your bank, that is UCO बैंक के साथ आपका एक 4 साल से अकाउंट है. All my financial transactions have been carried out through this account. और जितने भी मेरे फाइनेंशियल अकाउंट ये ट्रांजैक्शंस है इस बैंक से मैंने किए. I have been associated with the business of dress material and dupattas for the last 10 years. और last 10 years से उनकी associated means वो business किस चीज के कर रहे हैं? ड्रेस मटेरियल और दुपट्टास के लिए. For how many years? 10 years. I have to travel throughout Gujarat and out of Gujarat to purchase material. वो बोल रहे हैं कि मुझे throughout गुजरात घूमना पड़ता है और गुजरात से बाहर out of गुजरात क्या चीज करने के लिए? मटेरियल खरीदने के लिए. I have to pay in cash, so I have to keep a big amount with me while traveling. अभी आपको पता है अगर आप कहाँ पे जाते हो, जैसे पहले ये जो फैसिलिटी है नहीं था तो आपको काफी पैसा एक साथ संभाल के लेके जाना पड़ता था अगर आपको कुछ भी खरीदना हो तो. सो उनके पास भी बड़ा कैश जो है वो लेके घूम नहीं सकते. सो ही हैज टू कीप अ बिग अमाउंट, मींस बल्क में पैसा ज्यादा रखना पड़ता है विद मी व्हाइल ट्रैवलिंग, सफर करने के टाइम. और हैज यू नो अभी ये जो मोहन है काफी डेंजरस टू टेक सो मच ऑफ मनी. सो इसीलिए वो एक रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं. I request you to issue me a debit card or ATM card that provides the facility of withdrawing money from any city. Withdrawing means कोई कार्ड को आप स्वाइप करके डायरेक्ट पैसे वहाँ से आपके बैंक के इसमें से कट के आपको वो मिल जाएगा. This will provide safety. First thing तो ये safety होगा of money too. I would like to know what proof I shall have to present in the bank. और वो ये जानना चाहते हैं अगर मुझे ये कार्ड की जरूरत है मुझे क्या प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा to present in the bank so that I can have my debit card or ATM card early as possible. तो वो आपके ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो as soon as possible उससे मिल जाए. इसलिए वो ये रिक्वेस्ट लेटर में लिख रहे हैं कि मुझे क्या प्रूफ देना है. Thanks. वापस से will come. This will come at your left hand side. Thanks. Yours faithfully Dinesh Shah. Your will be your name और यहाँ पे बीच में होगा आपका सिग्नेचर. तो ये और एक रिक्वेस्टिंग लेटर है किस चीज के लिए? अगर आपको डेबिट कार्ड या एटीएम फैसिलिटी चाहिए तो ये और एक रिक्वेस्टिंग लेटर है जो आपने लिखा है. नाउ वी विल गो थ्रू द थर्ड टाइप ऑफ लेटर दैट इज रिक्वेस्टिंग टू ऑब्टेन एजुकेशनल लोन. नाउ एजुकेशनल लोन आपको पता है कि हर एक जो आम इंसान है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन अगर उनके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और उनको इंटरेस्ट है कि वो आगे भी पढ़े तो वो काफी टाइम बैंक के थ्रू लोन करवा के ले लेते. तो यहाँ पे और एक रिक्वेस्टिंग लेटर है दैट इज लेटर टू ऑब्टेन एजुकेशनल लोन. अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया यू हैव टू पुट दिस इनटू योर हेड, योर नंबर, योर एड्रेस टू द पर्सन यू आर सेंडिंग, राइट, एंड अगेन बिलो दैट विल कम सर, योर सब्जेक्ट एंड देन यू स्टार्ट योर लेटर. ये जितने भी मैंने रिक्वेस्टिंग लेटर किए हैं वो तीनों के तीनों लेटर आपके नोटबुक पे लिखने हैं. तो नाउ आई स्टार्ट विद दिस लेटर आल्सो. फोन नंबर 028362 whatever is your number. Then Guljibai Kachi 32 Shanti Tenements Madhapa Chokdi Anjar 370130 that is dated 25th November 2017. As you know because a bank में भेज रहे तो obviously the manager
यहाँ पे आएगा सर, कॉमा, डू नॉट फॉरगेट दिस, एंड जस्ट आफ्टर दैट कॉमा यू हैव टू स्टार्ट. I hold a savings account number 201332245 with your bank for the last 8 years. I have taken benefit of all services of the bank which I sincerely appreciate. तो ये बोल रहे हैं कि I hold a savings account number, मेरा एक सेविंग अकाउंट नंबर है जो है 201332245 with your bank for the last 8 years से मेरा ये अकाउंट आपके साथ है. I have taken benefit of all services, मैंने सब सर्विसेज के बेनिफिट आपके बैंक से लिए हैं और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका काम जो बैंक का एक काम है वो बहुत ही अच्छा है, तो मैं सिंसियरली उसे अप्रिशिएट करता हूँ. The state government and your bank have jointly introduced a scheme of educational loans for weaker sections of the society. तो वो ये लिखते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट और आपके बैंक जो दोनों ने जॉइंटली एक चीज इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या है कि आपने एक स्कीम निकाली है, वो है एजुकेशनल लोन की स्कीम फॉर वीकर सेक्शन. तो शायद वो जो ये लेटर लिख रहे हैं वो ये जानते हैं कि अगर वो वीकर सेक्शन है, मीन्स ज़्यादा उनके पास पैसे देने की एक ताकत ना हो, तो वो बैंक से लोन उठा के, और अगर उनका अकाउंट है तो थोड़ा बहुत उनको एक हेल्प भी मिल जाएगा. तो वीकर सेक्शन फॉर द सोसाइटी. अंडर द स्कीम I too desire to get loan for higher studies of my daughter. वो बोल रहे हैं अंडर द स्कीम, इस स्कीम के नीचे मुझे एक आशा है, मैं डिजायर करता हूँ टू गेट लोन, अगर मुझे हायर स्टडीज के लिए, अगर मेरी डॉटर को हायर स्टडीज के लिए भेजना है तो मुझे एक लोन मिल जाए. आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, मेरी डॉटर का जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, माय डॉटर हैज गॉट एडमिशन, उसे एडमिशन मिल गया है द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिल गया है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे उसे इंस्टीट्यूट में उसे अहमदाबाद में उसे एडमिशन लेना है. द फीस, लेकिन उसकी फीस कितनी है? द फीस फॉर द एंटायर एजुकेशन इज ₹12 lakhs. अभी एक बड़ी अमाउंट है, एक ही इसमें आपको 12 lakhs भरने हैं. इट इज इनएविटेबल फॉर मी टू सीक एन एजुकेशनल लोन. मुझे इतना पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही साथ में एजुकेशन लोन टू मीट द एक्सपेंसेस, वो एक ही साथ 12 lakhs तो नहीं दे पाएंगे. सो वो लिखते हैं प्लीज लेट मी नो, मुझे जानकारी चाहिए, द नेसेसरी प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर वो बैंक के थ्रू हो रहा है, एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं इन दिस रिगार्ड. इसके रिगार्ड में अगर मुझे लोन लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, और उसके हिसाब से फिर मैं अपना जो है वो आगे बढ़ा सकता हूँ. सो दैट वी कैन कीप देम रेडी, तो वो जो भी प्लान्स है उसे रेडी रख सके, which makes administration of borrowing loan smooth and prompt without delay. अगर आप यहाँ से ही सब कुछ करते हो तो वो लोन आप बोरो कर सकते हो स्मूथ वे में एंड प्रॉम्प्ट विदाउट डिले, और डिले भी नहीं होगा. कॉपरेशन इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आपकी कॉपरेशन जो एक्सपेक्टेड है, दैट आप कॉपरेट करो हमारे साथ. योर्स फेथफुली मुलजीबाई बच्ची, तो यहाँ पे वापस योर्स फेथफुली लिखना है, तो योर साइन इन दिस एंड योर नेम बिलो. So these are the 3 requesting letters that I have discussed in class 12 with you all. I hope so that you all have understood it. Please write all these 3 letters into your notebook. Try to understand how each and everything is written. It's very simple. It's everywhere you have the same thing through the manager. Only the name of the bank will definitely change. And obviously, if you want to write your own name, even like yours, we have just given you a printed name. But for the address and all, you can write any name. But yes, your subject has to be written properly. Whatever subject is or whatever heading is given in the letter writing, that becomes your main subject. So please go through all this. Here I finished with part 2 with class 12, and then in the third part I will be doing letter writing in a different way. Here they were requesting letters, there will be complaining letters. So in the third video I will come up with that. Thank you, stay safe, have a nice day.